होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका न्यूबी फ्रेंड और इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ नूब डेवलपर्स क्लब। दिस कम्युनिटी इज़ टू हेल्प ऑल द डेवलपर्स ऑल अराउंड अस। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं MIPS ट्यूटोरियल्स। बेसिकली ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो है टू मेक यू कंफर्टेबल विद QtSpim एंड MIPS लैंग्वेज। सो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डाउनलोड QtSpim। Actually, we all have seen this document. Okay, so yeah, this one. So what is QtSpim? Why is it used and why we have to use it? हम लोग इन सब बातों पे बात करेंगे that why QtSpim is necessary for us. तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने की बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. So to download for Windows, we have also created a PDF which will surely help you out. This is our PDF, and if we talk about how to download the QtSpim video, QtSpim simulator, then for Windows, this is for Windows. You can simply click on the वेबसाइट लिंक. दिस इज़ द sourceforge.net वेबसाइट. ये आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है एक डॉक्यूमेंट, उससे भी आप लोग देख सकते हैं. सो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन द वेबसाइट लिंक. इट इज़ द sourceforge वेबसाइट. इट विल टेक यू हेयर एंड बिकॉज माई सिस्टम इज लिनक्स बेस्ड, so it's proposing me an option to download the latest version of Linux 64-bit. Similarly is the case with your Windows also. You can download it directly from here. Just see that it would be written Windows here. यहाँ पर Windows लिखा होगा अगर आपका Windows based OS है तो. And otherwise you can go from here, from the list you can select your particular distribution. आप अपना distribution select कर सकते हैं. अभी मैं Windows के लिए बात कर रहा हूँ. You just simply click here and you can download it for Windows. आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, then you can run it. So this is the downloadable part for Windows. And if we talk about Linux, same is the case. You just click on this link, you will be transferred to the sourceforge.net website. आप यहाँ से Linux के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. एक छोटा सा काम और रह जाएगा उसके बाद, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है PDF में. ये PDF आपको मिल जाएगी ऑलरेडी. या आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू पेस्ट इन दिस कोड इन योर टर्मिनल, जहाँ पर आप लोग नेम की जगह रिप्लेस करेंगे अपना फाइल नेम. And because you are using sudo apt, so it will ask for your password. Go with the password and it will be installed. So finally जब install होता है तो QtSpim कुछ ऐसा दिखता है. मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ. ये रहा QtSpim. So दो विंडो रहेगी. It will be a two window configuration. One will be of QtSpim simulator. एक QtSpim simulator रहेगा, एक उसका कंसोल रहेगा. फिर उसके बाद आप यहाँ से ही सारे प्रोग्राम्स रन कर सकेंगे. अभी हम इस पर वापस आएंगे when we'll be running our first program. So firstly, let's talk about what is the assembly language and why it is used. So we will go to our PDF and talking about what is assembly language. So assembly language is a low-level programming language for a computer or other programmable devices specific to a particular computer architecture in contrast to most blah 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 blah. This you can read from here only. Actually होता क्या है कि machine understands the machine level codes. And what we understand is the high level languages, that is HTML, CSS, and talking about C, Java, Python. So assembly language comes in between those, means it's much nearer to the machine level code and very far from the high level languages. जैसे 3 लेवल आप सेटिंग समझ सकते हो. सबसे पहले मशीन लेवल कोडिंग होती है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है, फिर उसके बाद आता है आपका हाई एंड लैंग्वेजेस जो कि आपकी C++, पाइथन, जावा ये सब है. तो इट्स अ बिट इजी टू कम्युनिकेट विद प्रोसेसर यूजिंग दी असेंबली लैंग्वेजेस. इसीलिए ये पढ़ाई जाती है क्योंकि अभी हमारे में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है. वी हैव कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सो असेंबली लैंग्वेज इज अ मस्ट थिंग फॉर अस टू लर्न. सो फिर उसमें हम आते हैं कि हम MIPS क्यों पढ़ रहे हैं. तो MIPS असेंबली लैंग्वेज सिंपली रिफर्स टू द असेंबली लैंग्वेज ऑफ द MIPS प्रोसेसर. एक MIPS प्रोसेसर होता है जिसका आप फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस. इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने कोर्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. सो इसकी असेंबली लैंग्वेज है. अब QtSpim क्या है? QtSpim इज जस्ट अ सिमुलेटर फॉर MIPS. आप जो MIPS असेंबली लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स लिखोगे, लाइक आई हैव रिटन वन हियर, तो इसको रन कराने के लिए आपको कोई एक सिमुलेटर चाहिए, एक IDE चाहिए. तो QtSpim बिहेव्स एज एन सिमुलेटर फॉर दिस. ठीक है. तो वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर अबाउट व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज एंड क्यों करना है इसे. QtSpim डाउनलोड करना हमने सीख लिया है. अब उसके बाद QtSpim के अंदर आते हैं. तो QtSpim के अंदर की पिक्चर अगर हम लोग देखें तो इफ वी वांट टू सी द QtSpim सिमुलेटर, देन हाँ, हियर. सो इट हैज 2 पैनल्स. दिस इज द रजिस्टर पैनल. अब रजिस्टर पैनल क्या होता है इस पे अभी बात करेंगे. सो दिस साइड, दीज 2 आर द रजिस्टर पैनल पार्ट्स एंड दिस इज द मेमोरी पैनल. एक और पैनल होता है मैसेज पैनल, जो कि मेरे में विजिबल नहीं है, यहाँ नीचे होता है.
मैसेज पैनल बेसिकली इनके राइट्स जो हैं वो सब डिस्कस करता है, तो उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। और हाँ, एक दूसरी विंडो जो होती है वो कंसोल विंडो होती है, विच विल गिव यू द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम्स। ठीक है, सो अब बात ये आती है रजिस्टर पैनल क्या है। रजिस्टर पैनल फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर पॉइंट रजिस्टर्स की जानकारी रखते हैं। तो सवाल ये आता है रजिस्टर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आई एम रनिंग वेरी फास्ट बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रो वीडियो and we will talk about these topics like registers and all in detail in coming videos. It's a series of tutorials for MIPS programming language designed by us. So अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इट इन वेरी शॉर्ट, सो वी गो फॉर द रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं एक बहुत शॉर्ट और लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, इफ आई डिस्क्राइब इट इन यू इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, देन हमें पता है रैम क्या होती है। द स्टोरेज विच वी नो एज द रैम, इट इज़ अ वेरी इन डेप्थ स्टोरेज, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर की बहुत इन डेप्थ स्टोरेज है। अगर हमें फास्ट एक्सेस करना है तो हमारे लिए एक कंफर्टेबल स्टोरेज ऑप्शन होता है रजिस्टर। तो जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, व्हेन वी राइट इन एन असेंबली लैंग्वेज, वी यूजुअली एक्सेस द रजिस्टर स्टोरेज ऑल्सो एंड द मेमोरी स्पेस रैम ऑल्सो। सो हमें इधर से उधर फ्लक्चुएट करना रहता है बिटवीन द रैम स्टोरेज एंड द रजिस्टर स्टोरेज। सो वी डिस्कस बिटवीन द टू। ओके, सो रजिस्टर्स के बारे में इन डिटेल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा पैनल आता है वो डेटा और टेक्स्ट का आता है। अब डेटा और टेक्स्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो डेटा में आप ये देख रहे हो, ये बेसिकली आपका जो एक प्रोग्राम होता है। If we talk about your program, then your program contains basically two parts. One is the dot data segment, one is the dot text segment. Text segment contains all the information, that is the instructions which you want to pass to the machine so as to load it. And the dot data part contains all the memory which you push to the stack, which is necessary for your program to run. जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज नाम का लेबल यूज किया है, तो ये मेरे स्टैक में पुश हो रहा है, स्टैक मेमोरी में, जिससे मैं इसको आगे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकूं। और ये जो डॉट टेक्स्ट के अंदर ये पूरी बॉडी है, ये डिस्क्राइब कर रही है वो इंस्ट्रक्शंस जो मैं अपने प्रोग्राम में रन करना चाहता हूँ। इट इज डिस्क्राइबिंग द इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू वांट टू लर्न इन आवर प्रोग्राम, लोड इनटू आवर प्रोग्राम। सो ओके, तो ये हो गई हमारी थ्योरेटिकल बातें। व्हाट इज डेटा, व्हाट इज टेक्स्ट पैनल, व्हाट इज द रजिस्टर पैनल, व्हाट इज द मेमोरी पैनल। तो ये तो बेसिक एक इंटरफेस हो गया। हम अगर GUI देखना चाहें तो ये GUI का डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन to our original program. So if we talk about a hello world program, like we used to run a hello world program, मैं आपको ये प्रोग्राम लिख के भी दिखा सकता हूँ, but it's better कि हम टाइम बचाएं और we just move on with the explanation part. So दो पार्ट हैं इसमें। I am explaining you how to write these programs. Firstly, you have to save a file sample.asm. ASM is the extension for assembly language. Some also uses .s, but here we will go with ASM. Okay, so we will save our file with .asm extension. और हर प्रोग्राम के दो पार्ट्स रहेंगे। वन इज योर डॉट टेक्स्ट सेगमेंट, दिस विल कंटेन द इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू वांट टू बी परफॉर्म। ये वो चीज़ें स्टोर करेगा जो इंस्ट्रक्शंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि एक्चुअल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, जैसे क्या लूप चलाना है, क्या लोड करना है, क्या प्रिंट करना है, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस यू विल स्टोर हियर। एंड द डॉट डेटा पार्ट विच विल स्टोर ऑल ऑफ योर मेमोरी बेस्ड थिंग्स। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज, तो मुझे पहले वो डॉट डेटा में डिक्लेयर करके उसमें चीज़ें जो भी स्टोर करना चाहता हूँ वो स्टोर करूंगा। When it is stored in the dot data part, then it can be accessed through dot text body. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि एक प्रोग्राम में when we write a program of in MIPS assembly language, we have two segments. One is your test segment containing instructions, और second is your data segment. हम लोग डॉट डेटा को पहले डिफाइन करते हैं, उसमें हम लोग सारी मेमोरी स्टोर करते हैं, हमें क्या क्या काम है, किन किन वेरिएबल्स, दैट इज द लेबल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स को लेबल्स कहा जाता है, किन किन लेबल्स के काम है हमें, वी स्टोर दोस थिंग्स इन डॉट डेटा, देन वी गो फॉर डॉट टेक्स्ट सेगमेंट, इन दिस वी स्टोर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर और द बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ अवर प्रोग्राम इन MIPS लैंग्वेज। अब मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, दिस इज अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो फर्स्टली हम लोग इसको रन करना सीखेंगे, फिर हम लोग इसके बॉडी में जाएंगे। सो टू रन दिस वी जस्ट सेव इट, वी गो टू अवर QtSpim GUI। यहाँ पर ये आइकन है, और अगर आप इन डिटेल जाना चाहते हैं तो यहाँ से लोड फाइल, जब आप फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर लोडिंग अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू वांट टू रन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल गो विद लोड फाइल। बट द बेस्ट थिंग इज गो विद री इनिशियलाइज एंड लोड फाइल, बिकॉज इट विल इनिशियलाइज योर GUI सिस्टम। ये सारी मेमोरी को, स्टैक को जीरो कर देगा और फिर से तुम्हारी फाइल को लोड करेगा। सो गो विद री इनिशियलाइज एंड लोड फाइल, दिस विल सर्च इन फॉर योर कोड। सो यहाँ से आप अपने कोड को सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ कहीं भी है। माई कोड इज एट द डेस्कटॉप, इट्स sample.asm।
So I just load it into it and nothing happens. So this is the best thing, nothing happens is the best thing because there is no error. अगर कोई error होता तो it would have pop up here only in a dialog box. So मेरा जो फाइल है वो लोड हो चुकी है. I have loaded the file. कहाँ से किया? I went into reinitialize and load file. I selected my file. I clicked on open. Okay, so my file is loaded. Now see, this is the play button, this is the run and continue button. This will compile your program, what you call as compilation in C or other languages. This will compile your program and run the in this assembly language, we instead of using the word compile word use करने की जगह हम लोग use करते हैं, we use the assembler word. That is, our program is assembled, our code is assembled. Now we run it, and in the console window we get our output, hello world, I am a newbie. Okay, सो अब हम इसके आर्किटेक्चर पे जाएंगे, इस प्रोग्राम के आर्किटेक्चर पे जाएंगे, दैट हाउ वी रोट दिस प्रोग्राम. सो हमने बताया कि एक प्रोग्राम के बेसिक दो पार्ट्स होते हैं, डॉट डेटा सेगमेंट, डॉट टेक्स्ट सेगमेंट. डॉट डेटा सेगमेंट में हमने एक लेबल बनाया, वी क्रिएटेड अ वेरिएबल नेम्ड मैसेज. मैसेज नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया. कोलन से यहाँ पे इक्वल की जगह हम लोग कोलन यूज करते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू इनटू द बेसिक हाई लेवल लैंग्वेजेस के टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन terms of the high level languages so that we can just correlate between the two. Okay, so this dot ASCII which you see here, this is the storage type, means the thing which you want to store, this thing we want to store in this label, the thing which you want to store is of which type of storage. So it is a dot ASCII storage. अब ये आपको मुझे कैसे पता चला या आपको कैसे पता चलेगा, how will get to know about ASCII or anything like that. See, जो हमें MIPS instruction set मिले हैं which you have got from your college, you just see it. Firstly are the arithmetic instructions. This is a very complete PDF. This instruction set is very complete. You will get each of the logical operators or the data transfer terms or the arithmetic instructions or the directives, everything which you will use for your writing programs is given here. Okay, so हम लोगों ने देखा storage type हमने देखा है. So it is given, yeah, it is given here, assembler directives. These are called assembler directives. I think the name is not correct or what. It's correct, it's correct. So we see here dot ASCII. Dot ASCII is str. This is the format of writing. Dot ASCII is the keyword for this directive, and str, in place of str you will write your string. Like you can see, I have written my string as hello world, I am a newbie. Okay, so you can see here also it's written store the ASCII string in str memory and null terminate it. Strings are in double quotes. Okay, so using this ASCII, acha, very similar, other storage types are also very similar to this. You can use dot word. This stores n32 bit values in successive memory words. मतलब आप कोई भी n, जैसे एक चीज आपने स्टोर किया, दो चीज स्टोर किया, तो ये 32 बिट्स में उसको स्टोर कर लेगा. बेसिकली वी यूज वर्ड टू स्टोर इंटीजर्स एंड ऑल थिंग्स. ठीक है, डॉट हाफ ये 16 बिट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है. डॉट बाइट दिस कैन स्टोर 8 बिट वैल्यूज. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशंस. Whether it is the 32-bit stage, 16-bit stage, 8-bit stage, byte stages, you have to be very confident and clear in this, because अगर आपके ये concepts कमजोर होंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगी assembly language में खेलने में. You will face difficulty in playing with the assembly language. Play with the code. I think I have heard this word somewhere. Oh, whatever. Okay, so we move forward. So we have used this ASCII character storage type. Okay, so हमने क्या किया, एक मैसेज नाम का लेबल बनाया ASCII स्टोरेज टाइप का, उसमें हम लोगों ने हेलो वर्ड आई एम अ न्यूबी स्टोर कर लिया. फिर हम लोग जो डॉट टेक्स्ट वाली बॉडी में गए, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक ग्लोबल मेन बनाया. सी दिस विल बिकम, अगर आप ये ना लिखे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट दिस विल बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल गो इनटू लर्निंग अबाउट फंक्शन कॉलिंग. जब आप फंक्शन कॉल करना सीखेंगे तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा. ये डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हमारे C और C++ में हम लोग मेथड्स और फंक्शंस यूज करते हैं, जावा में हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे प्रोसीजर्स कहा जाता है. तो हम लोगों ने एक ग्लोबल प्रोसीजर बनाया मेन, जैसे आपका मेन होता था C में, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने ग्लोबल प्रोसीजर बनाया. .globl ये इसका एक्सटेंशन है, मेन आपका नाम है, मेन बॉडी आपने बनाई. तो मेन बॉडी हम लोगों ने बना ली डॉट टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, अब ये मैंने कॉमेंट्स कर रखे हैं, हैश इज यूज फॉर दी कॉमेंट्स. ठीक है, तो अब ये कोड का पहला पॉइंट है. LI, मैं कोड आपको अपने PDF में दिखाऊं, वहां पर अलग अलग कलर्स हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज की. ये ब्लू कलर से वॉट एवर थिंग्स आर इन ब्लू कलर, दीज आर द कोड पार्ट, एंड वॉट एवर इन रेड कलर, दीज आर द कमेंट पार्ट. ठीक है, तो जो ब्लू में है वो कोड है, जो रेड कलर में है वो आपका कमेंट है. ठीक है, तो डॉट डेटा में हम लोगों ने ये लेबल बनाया, लेबल में हम लोगों ने स्टोरेज टाइप डाला, स्टोरेज टाइप में हम लोगों ने स्ट्रिंग स्टोर कर ली, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है विद अ नल पॉइंटर. ओके, फिर डॉट टेक्स्ट में हम लोग गए, डॉट टेक्स्ट में हम लोग मेन में गए, मेन में
अब मेन में हमें करना क्या है, अब ये V0 क्या है, ये A0 क्या है, अब इस पे डिस्कस करते हैं. सी V0, A0, these all are types of registers. If you look into the QtSpim window or integer types, you will get it here. Yeah, see, this is A3 register, this is T0 register, this is T1 register. अब ये क्या होते हैं, what are these? So we will go into the MIPS instruction. यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता रखा है. सी 0 ये एक रजिस्टर है, 2 3 रजिस्टर नंबर है ये, ठीक है. ये V0 V1 ये होते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स और इन सबके अलग अलग काम है, विच भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है. 0 में हमेशा 0 वैल्यू स्टोर रहती है, आप इसको बदल नहीं सकते हो. V0 V1 का भी कुछ काम है, वैल्यूज फ्रॉम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड फंक्शन रिजल्ट्स. A0 ये किस तरह की वैल्यूज स्टोर करता है या इसका फंक्शन क्या है, ये चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. वी विल लर्न इट इन डिटेल while we proceed with our programs. जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स में इनको यूज करते जाएंगे हम इनके बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है. तो जैसे अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोगों ने V0 रजिस्टर यूज किया है. तो V0 रजिस्टर जो होता है ये हम लोग तब यूज करेंगे जब जब हम लोगों को प्रोसेसर को बताना होगा. whenever we want to tell our processor that we want to run something and we are running a program and what we want to do with the program, हम प्रोग्राम्स के साथ क्या करना चाहते हैं, तब हम लोग ये V0 रजिस्टर यूज करेंगे. जैसे अब ये LI क्या है, LI के बारे में भी देख लेते हैं भाई. तो LI का सीन ये है, LI क्या हुआ, LI का फुल फॉर्म हुआ लोड इमीडिएट. मतलब ये डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है. डेटा ट्रांसफर मतलब मैंने आपको बताया कि वी बेसिकली डील विद 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी स्पेसेस. एक आपकी जो मेमोरी रहेगी, एक आपका जो रजिस्टर रहेगा. मेमोरी मतलब जो रैम और रोम वो सारी बातें, ठीक है. तो बेसिकली लोड जब हम लोग कोई चीज करते हैं तो हम लोग मेमोरी से रजिस्टर में वो चीज ट्रांसफर करते हैं. जब हम लोग स्टोर करते हैं तो हम लोग रजिस्टर से वापस मेमोरी में, क्योंकि हम लोग कोई चीज अगर स्टोर करते हैं, इफ आई से यू दैट ये PDF आप लोग अपने डेस्कटॉप पे स्टोर कर लो, तो वो कहाँ स्टोर होती है, इट्स बेसिकली स्टोर्ड इनटू योर मेमोरी. यू डोंट यूज अ रजिस्टर स्टोरेज स्पेसेस फॉर दिस. ओके, सो व्हेन वी store something we copy it from register to memory, when we load something we copy it from memory to register. So here we are using load immediate. अब load immediate किस काम आता है, ये यहाँ पर इसका एग्जांपल दे रखा है. you can call it as a syntax also. So load immediate $1 $1 and 100 means इस रजिस्टर में ये 100 को इमीडिएटली लोड कर दे रहा है. अब ये देखो सूडो इंस्ट्रक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस. प्रोवाइडेड बाय असेंबलर नॉट बाय प्रोसेसर. लोड्स इमीडिएट वैल्यूज इनटू द रजिस्टर. मींस व्हाटएवर वैल्यूज वी आर गिविंग इट इज लोडेड इनटू द रजिस्टर. सो if we interpret this whole line, it is saying that load immediate del assign V0, 4 means load immediate is used to store this value into this register. So 4 is stored in the V0 register. अब इसका काम क्या है, I have written the work of this particular line here also. Load immediate is a data transfer type. Okay, it is a data transfer type called load immediate. Loading immediate 4 into V0 tells the processor that users want to print a string. अगर आप V0 यूज कर रहे हो तो string print होगी. Let us suppose हम लोग इसको बदलें. अभी आप लोग you will see it further that we sometimes we are using 1 is used to print integers. ठीक है. So we will use different values, we will load different values into V0 for different activities. Here we are using 4 because we want to print a string. Make it clear, whenever you want to print a string you will use this line and you will load 4 value into V0. ठीक है. So friends, I would like to add one thing. We are also not we don't also have so much in-depth knowledge, but as we are learning, we are trying to help others also. And this is all the whole concept of this initiative of Noob Developers Community. So while we are learning, we are seeing these things, and so as we are creating videos and telling it to you also, हम ऐसे ही आप लोगों को बताते भी चल रहे हैं. ठीक है. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो हम लोगों ने V0 में स्टोर कर दिया, मतलब हम लोगों ने अपने प्रोसेसर को बता दिया कि जो ये प्रोग्राम अभी रन होगा, इस प्रोग्राम में हम लोग इसके बाद कोई एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं. तो आप प्रिंट कहाँ से करोगे, तो प्रिंट करने के लिए पहले हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए. सो जो हम लोगों ने ये मैसेज क्रिएट किया, ये मैसेज क्रिएट हुआ है मेमोरी में. जो भी हम लोग लेबल, वी क्रिएटेड अ लेबल, वी स्टोर्ड अ स्ट्रिंग इनटू इट. सो आई एम यूजिंग द वर्ड स्टोर मींस इट इज इनटू मेमोरी. So we want to load it into our register, cause in assembly language we will deal with registers to get our desired outputs and all things. ठीक है. So we will use the A0 register. अब A0 register ही क्यों use करेंगे? Why are we using only the A0 register, not anything else? आप you can go into the MIPS instruction set and you can see system calls. Okay, system calls क्या है, पहले system calls देख लेते हैं. System call देखिए, मैंने इस लाइन के बाद after this line I have used system call. System call is asking the computer to do something. Okay, so it is asking the processor to do something. What is to perform an operation. Okay, operation कौन सा perform होना है, ये यहाँ से describe होगा. ठीक है. which type of register we are using, what are we loading into it, this will describe that what operation is going to be performed by the processor, by the assembler. Okay, so system calls कई तरह के होते हैं. जैसे अभी हम लोग देखते हैं, if we want to print an integer, if we want to print an integer of 32 bit,
we will use, see, code in del assign v01, we will, मैंने कहा था ना कि when we want to print integer हम लोग load in immediate del assign v01 यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि कोड 1 into del assign v0। अभी हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग पे चलते हैं। नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर स्ट्रिंग, जो आस्कीज था हमारा z वाला ये वाला, वो नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए इन्होंने पहले कहा कि कोड इन del assign v0 व्हाट 4। तो इन्होंने कहा del assign v0 में 4 कोड कर दो, तो मैंने del assign v0 में 4 कोड कर दिया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं, दे आर सेइंग they said us to code in del assign v0 4, so we coded in del assign v0 4. Okay, now they are asking us to load the address of string into the register memory. So in the register del assign a0, in the register del assign a0 we want to load the address of the desired string. तो desired string हमारी इस लेवल में स्टोर थी, desired string, our desired string is stored in the message label. So we are loading the address of message into a0. And how we are loading, हम कैसे लोड कर रहे हैं? We are using LA for this. LA means load address. See, I am telling you many times that this MIPS instruction set PDF which you got from your college, it is complete in itself. It contains everything. See, if we go for LA, see, it is written load address. This is the syntax, means load address. Del assign 1 means the register which you want to use, and label means कहाँ से एड्रेस उठाना है, the variable from where you want to extract the address, of which address you want to use. Okay, so हम लोग अगर यहाँ पर देखें, so we used the address of message label and we loaded it into a0. Okay, हमें इसने बता रखा था कि whenever we want to print a null terminated string, we will firstly load 4 into v0, then we will load the address of label या address of string into a0. हम लोग a0 में फिर अपने स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग सिस्टम को कॉल कर देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस लाइन एंड दीज टू लाइन्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ अवर स्ट्रिंग। इसने बताया दिस टेल्स टू द प्रोसेसर दैट वी वांट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट टेल्स द प्रोसेसर दैट this string is needed to be called. This is the print function. You can call it as the print function. This too will act as the print function. Okay, this is responsible for printing the particular string. Okay, so after that, why we are using these lines? If the work is over here only, अगर यहीं पे काम खत्म हो गया तो हम ये दोनों लाइन क्यों यूज कर रहे हैं? See, these two lines are particularly responsible for kind of return zero type. Means हम return zero क्यों यूज करते थे? If we don't go into detail of the return zero thing, we can just say that प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, मीन्स ये मशीन को बता देता था दैट अवर प्रोग्राम हैज कंप्लीटेड, अवर प्रोग्राम इज कंप्लीटेड. सो सेम केस हियर आल्सो, दिस del assign v0 10 loading immediate 10 into v0 will tell the system that our program is completed. Whatever we wanted to do we have done. हमने जो भी करना था हम कर चुके हैं. अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला? I got the same here only. See, stop program from running. How? कोड इन v0, कोड इन v0 में 10 कर दो, ठीक है, तो ये एग्जिट कर देगा कोड को. तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपका ऑपरेशंस के लिए बहुत यूजफुल है. इसके लिए आपको और कोई काम नहीं करना है कि a0 में आप कुछ लोड कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो. यू जस्ट हैव टू लोड 10 इंटू v0. तो हमने 10 को v0 में स्टोर किया, फिर उसके बाद सिस्टम को फिर से कॉल किया. तो सिस्टम ने जब कॉल हुआ सिस्टम, तो सिस्टम ने ये लाइन देखी और वो समझ गया कि प्रोग्राम हैज एंड. ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम रन कर गया. तो अब मैं आपको इसको रन करके भी एक बार दिखा देता हूँ. देन वी विल एंड दिस ट्यूटोरियल, दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो हम लोगों ने रन किया. एक बार मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ. इसको मैंने रन किया, वी वेंट इनटू द प्ले बटन, रन बटन, एंड इसने ये कंसोल ने मेरे वीडियो को. अब मैं इसको थोड़ा एडिट करता हूँ. लेट्स जस्ट एडिट दिस कोड अ लिटिल. सपोज आई जस्ट डिलीट दिस पार्ट, आई जस्ट कमेंट इट आउट. मीन्स आई डिडंट टेल द प्रोग्राम टू कंप्लीट इट. My program is not completed still. Firstly, I will save it using Ctrl S. Then I will go into my Qt Vim and I will reinitialize my code. Okay, so it's reinitialized, and when I compile it, see, my output is printed. Whatever I desired, it is printed because it was being printed from these lines. Okay, these two lines. This is a comment. So my output is printed. Okay, but it's giving attempt to execute non-instruction at 0004. This is the memory stack. This is the memory stack. That something is happening here. It's an error has occurred. This is because you didn't told your processor to complete the program. It haven't seen the end till yet, and you are compiling it in mid. So this is giving such kind of error. Now we will just write it again. Okay.
So these are some of the basic things used in a simple general assembly language program. MIPS की coding, we are bringing a tutorial series for you all so that we can help each other in learning MIPS language, okay, as it is a very important part in our COA labs, okay. So help us out friends, support us, and it will not be a profitable video or some kind of thing. It's just to help each other out. If you have any suggestion regarding these videos, you can comment it in the comment box, or join the community. Link will be shared in your official group, and in future we are planning very big things also for this community. So hope you like this video. We are coming here coming with many such tutorial series in coming future, okay. So hope you like this video, और this instruction set, ये जो instruction set हमने बनाया है, this will be shared among you guys once we upload these videos on the YouTube channel, okay. So show your love, support, and we are always open for your suggestions. Join our Discord server, join our Telegram channel. We can have discussion forums over these topics there. Video में one way communication होता है. It's just we can deliver our thoughts, and if you have any doubts or you have any suggestions, you can always come up in our Discord server or Telegram server, okay. So we end our video here only. Thank you guys, have a nice day, bye bye.